ফুলে কথা লাগে লেঠা গতিকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক তেতিয়া বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাসকল এতিয়া যি মূল্যবৃদ্ধিৰ মতো ক'বলৈ টান পায় তেওঁলোকৰ মুখাখন ভালকৈ খোলা খাব গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব আৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন এই যিসমূহ মন্তব্য মই শুনাম সেইবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে শুনিব তেতিয়া এনেকুৱা লাগিব যেন মনমোহন সিঙক নহয় প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক নহয় বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকহে যেন গালি পাৰি আছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে যিসমূহ কথা কৈছিল मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं, आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते। प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। आज एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवंबर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का वचनों का पालन नहीं करती उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिस आम आदमी की समस्याओं को लेकर एनडीए सड़क पर उतरती हुई है उसी बंद से आम आदमी को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण विश्वास अब तक का किकबैक में रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी रोल बैक की भाषा भारत की जनता की नहीं समझ पा। এইগৰাকী স্মৃতি ইৰাণী যিগৰাকীয়ে এটা সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধি এলপিজি চিলিণ্ডাৰেই হওক বা পেট্ৰল ডিজেলেই হওক সকলোৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথতো নামিছিল, সংবাদমেলৰ ওপৰতো সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁ যিখিনি কথা তেতিয়া কৈছিল এতিয়া যেন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে সেইখিনি কথা কৈ আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী এতিয়া মানে পদত্যাগ কৰিব লাগে, ইমানখিনি মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে, যদি কেলেংকাৰী টকাখিনি যদি সাধাৰণ ৰাইজৰ যদি উন্নয়নৰ হেকে লগায় তেতিয়া ইমানখিনি মূল্যবৃদ্ধি নহয় সেই বুলি মন্তব্য কৰিছিল এটা সময়ত। আৰু যি বিজেপিয়ে এটা সময়ত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত বন্ধ দিছিল বা ভাৰত বন্ধ দিছিল বিভিন্ন সংগঠনে সেই সংগঠনৰ যিসমূহ মানে নীতি বা উদ্দেশ্য তাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই ভাৰত বন্ধত ৰাজপথলৈ সেই সংগঠনবিলাকৰ সৈতে একেলগে ওলাই আহিছিল আৰু এতিয়া সেই বিজেপিৰ দিনত কিন্তু ভাৰত বন্ধ নোহোৱা হ'ল, অৰ্থাৎ ভাৰত বন্ধ এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দৰেই হৈ পৰিল আৰু কোনেও ভাৰত বন্ধও নিদিয়া হ'ল, অসম বন্ধও নিদিয়া হ'ল মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ইমান হয়তো মই যিটো কথা কৈছোঁ ফেচিষ্ট নাছিল যে ভাৰত বন্ধ দিয়াৰ তেওঁলোকে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল। ভাৰত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা আমি নিজেই 2013 চনত বা 2012 চনত আমি নিজেই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ অৰাজকতা চলিছিল নিশ্চয়কৈ, সেইটো কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু সেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অৰাজকতা উফৰাই এই বিজেপি চৰকাৰখন অনা হৈছিল আৰু কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সেই বেয়া দিনত চিলিণ্ডাৰ এটাৰ দাম আছিল 410 টকা আৰু আজি 1100 1150 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে আৰু কালি শেহতীয়াকৈ 50 টকা বৃদ্ধি পালে। আৰু এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা সময়ত কি কৈছিল সেয়া মই শুনাম। তাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকেই যেন গালি পাৰি আছে এইগৰাকী স্মৃতি ইৰাণীয়ে, সেই তেনেকুৱা যেন লগা কেইটামান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। 27 और 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में एलपीजी के कटौती के संदर्भ में देश भर में जो महिलाओं के बीच आक्रोश है उसे किस प्रकार से हम व्यक्त कर सके, इस चिंता को जनता के समक्ष सरकार के समक्ष हम कैसे रख सके, इस विषय को लेकर चिंतन हुआ, बातचीत हुई और ये निर्देश आया और ये निर्णय लिया गया कि महिला मोर्चा देश भर में एलपीजी की जो कटौती है, जो कैप है, उसको लेकर संघर्ष करेगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि
अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन कर, एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। एलपीजी पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। देखिए, जिस देश में 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, उस देश में घोटालों के माध्यम से कांग्रेस और यूपीए के सहायक दलों के जो नेतृत्व ने पैसा गबन किया है, वही पैसा अगर देश में आम इंसान के ऊपर खर्चा किया जाता तो इस प्रकार की बढ़ती महंगाई का जो प्रकोप है वो साधारण महिला को और परिवारों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है। संसद की अपनी एक गरिमा होती है। एक एक सांसद इस बात को पूर्णतः जानता है कि संसद के सदन में जब हम बोलते हैं तब उस एक एक शब्द की अपनी न सिर्फ गरिमा होती है बल्कि बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से उस वचन की पूर्ति हम कर सके, इसका प्रयास सांसद करें, ऐसा एक देश में विश्वास था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन में महंगाई को घटाएंगे इस वचन की पूर्ति को नहीं किया है, तब से देश में एक संदेह पैदा हुआ है कि अगर देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर हम महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए विश्वास नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रधानमंत्री का और ऐसी सरकार का जिस पर भरोसा नहीं है देश की जनता का, क्या फायदा। बीजेपी की जब सरकार आएगी 2014 में, आप मुझे कह रहे हैं कि स्पेकुलेट करूं, मैं विश्वास के साथ कह रही हूं कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो ये महिला विरोधी जो नीति अपनाई है कांग्रेस लेड यूपीए ने, इसको जरूर खत्म करेगी। নিশ্চয়কৈ কেৱল ইমানেই নহয়, এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক কৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে महंगाई की मौ बोलने के लिए तैयार नहीं है, অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ মটো ক'বলৈও প্ৰস্তুত নহয়। কিন্তু এতিয়া এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত মূল্যবৃদ্ধিৰ মটো ওলাইছেনে? মই কম কথা ক'লে কথা লাগে লেঠা, গতিকে শুনি লওকচোন তাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েনো কি কৈছিল সেই তাহানিতে। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। म्यूजिक নিশ্চয়কৈ এতিয়া এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েহে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ মটো
ক'বলৈ টান পায় বা উচ্চাৰণ কৰিবলৈ টান পায়। দিনক দিনে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিন অৰ্থাৎ 2013-14 চনত পেট্ৰলৰ দাম আছিল 70 টকা বা 60 টকা বা पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस ডিজেলৰ দাম আছিল 50 টকা 56 টকা সেই পৰ্যন্ত আছিল। চিলিণ্ডাৰত ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত যি চিলিণ্ডাৰ ৰাজসাহাৰ্য দি পেলাই 410 টকাত ৰাইজে ক্ৰয় কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া যদি এইখিনি কথা মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা যদি আজি আমি উল্লেখ কৰোঁ, তেতিয়া বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা বা যিসকল অন্ধভক্ত আছে সেই ভক্তগণে কয় যে মানুহৰ বোলে উপাৰ্জন বাঢ়িছে। ক'ত মানুহৰ উপাৰ্জন বাঢ়িছে? উপাৰ্জন আজি বাঢ়িছে যদি হাজিৰা কৰা লোকে আগতে 300 টকা লৈছিল, আজিকালি তেওঁলোকে 500 টকা লয়। কিহৰ কাৰণে লয় জানেনে? মিঠাতেলৰ লিটাৰ 180 টকাৰ পৰা 210 টকা পৰ্যন্ত। দালি 1 কেজিৰ দাম কিমান? চাউলৰ কেজি 50-60 টকা পৰ্যন্ত। বহুতে এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰা নাই। অৰুণোদয় আঁচনিত পায় মাত্ৰ 1250 টকা। সেই 1250 টকাৰে ঘৰখন চলিব নোৱাৰে গোটেই মাহটো। সেয়েহে কওঁ যে আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে ৰাইজৰ উপাৰ্জন ইমান বৃদ্ধি পোৱা নাই। দেশৰ GDPও সিমানেই বৃদ্ধি পোৱা নাই, ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই গৈ আছে। কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত আপোনালোকে কৈছিল যে ঘোটেলা হৈছিল, 2G স্কেম হৈছিল, 3G স্কেম কিবা কিবি হৈছিল বা কয়লা কেলেংকাৰী হৈছিল। যদি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত যদি কয়লা কেলেংকাৰী হওক বা অন্য কেলেংকাৰী হোৱাই নাই, তেতিয়াহ'লে সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই? জনসাধাৰণক কিয় সকাহ কৰিব পৰা নাই? তেওঁলোকে কেলেংকাৰী কৰি পেলাই যদি মূল্যবৃদ্ধি কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে, কেলেংকাৰী নোহোৱাকৈ বিজেপিয়ে কিহৰ কাৰণে ৰাইজক ওপৰত এতিয়া মাধমাৰ সোধাই আছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জৰিয়তে? নিশ্চয়কৈ ভাবিবলৈ সময় হ'ল। ৰাইজ জাগ্ৰত হওক।